I hope all of you well at home and you are following the preventive measures and guidelines which was given by Government of India to be safe at home. Welcome back to the e-learning module of class 12th accountancy. Today in this module we are going to discuss about the accounting for partnership. In this module we will going to discuss about some basic concepts of accounting for partnership. In this module we will discuss the topics which are meaning of partnership, definition of partnership, nature and features of partnership, then what is partnership deed and what are the subjects of partnership deed, or we can say that what are the contents of partnership deed. Now come to the first topic, meaning. What is the meaning of partnership? In a very simple sense, we can say that when two or more persons join hands to set up a business and share its profits and losses, they are said to be in partnership. It means जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में होने वाला जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो एक दूसरे में शेयर करते हैं, तो उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप. क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप. सो इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. वी कैन नॉट कंटिन्यू द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अंडर एनी मिस हैपनिंग you cannot continue. So to overcome that limitation we have to go with the partnership. Now we come to the definition. All of you know about that. Partnership Act was passed in 1932. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 define the partnership. It is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business. Means relation between person, there will be two or more persons and they are agree to share the profit. Here we will not consider the loss, because if the partner is minor, in that condition the minor partner will not share the loss, so only it is written here profit. Next part is carried on by all or any of them acting for all. It means that business will carried by all the partners or any one of the partner, but all the partners are in acting form. It means they are only showing as partner, but they are not actively participated in the activities of the business.
Now we have discussed the meaning of the partnership. We have discussed the definition of the partnership. Now we will come to the features. Some essential features of partnership are: first is association of minimum 2 or maximum 50%. It means किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर तक हो सकते हैं, नॉट मोर देन 50%. सेकेंड, एग्रीमेंट. It means when we are going to run the business in partnership form of business, it may be a verbal agreement or may be a written agreement. It is not mandatory. We have to get the agreement in written form only. आप चाहें तो वर्बल एग्रीमेंट भी रख सकते हैं. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. इट मीन्स आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए. in the eyes of law, your business will be a legal business, not a illegal. अगर आपका वो बिजनेस इलीगल है तो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी. नेक्स्ट इज कैरिंग ऑफ बिजनेस बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मीन्स या तो बिजनेस सब पार्टनर मिलकर के चलाएं या कोई एक पार्टनर चलाए बाकी सब पार्टनर के बिहाफ पर. नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. जो भी हमारा पार्टनरशिप का प्रॉफिट होगा वो सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब वो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. अनलिमिटेड लायबिलिटी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज. इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस में लॉस होता है तो पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेच करके उस बिजनेस के लॉस को पूरा करना पड़ेगा. नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट नेसेसरी लॉसेस. इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट होगा वो तो सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. नेक्स्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट. मीन्स सब पार्टनर्स के बीच में अपनी आपसी कंसेंट होनी चाहिए. वो आपस में एक दूसरे के पार्टनर बनने के लिए खुद ही एग्री होने चाहिए, बाय फोर्स नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, रिलेशनशिप. इट मीन्स पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो दो तरह से हम डिवाइड करते हैं. पहला, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मतलब ऑल द पार्टनर्स आर ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट, एजेंट. जितने भी पार्टनर होंगे वो सारे के सारे बिजनेस के एजेंट माने जाएंगे. अगर कोई भी एक पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट केवल उसी पार्टनर पे नहीं बाकी सब पार्टनर्स पे फॉलो होगा. सो दैट इज द एजेंट ऑफ फर्म. Now we discuss the features. Same thing we are going to discuss in the nature of partnership. 2 or more persons, agreement will be there. It may be written or oral.
business, it must be a legal business. Mutual agency, clear, means all the partners are the owner of the business as well as they are treated as the agent of the business. Sharing of profit, all the partner will distribute the profit. And next, liability of partnership. The liability of the partnership is unlimited. Now the another important concept is, what is the meaning of partners, firm and firm name? Now we will discuss it one by one. First is partners. Partner means the persons who enter into the partnership with one another. मतलब those persons जो पार्टनरशिप फॉर्म में आए हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने के लिए, दे आर नोन एज पार्टनर्स. एंड व्हेन दे आर कलेक्टिवली कम, देन कलेक्टिवली इट इज नोन एज फर्म. मतलब सबको मिला करके तब हम उसको बोलते हैं फर्म. नेक्स्ट इज फर्म नेम. फर्म नेम मीन्स जिस नाम से वो बिजनेस करेंगे, जिस नाम से उस बिजनेस की पहचान होगी, दैट इज नोन एज द फर्म नेम. नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बट कंपनी एक्ट 2013 उसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि चाहे वो हमारा बैंकिंग बिजनेस हो, चाहे वो हमारा जर्नल बिजनेस हो, दोनों कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होंगे वो 50 ही होंगे. 50 से ज़्यादा पार्टनर अगर हैं तो वो इलीगल माना. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड. अभी हमने पीछे एक टर्म पढ़ी, एग्रीमेंट. मीन्स जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा पार्टनर एक साथ आ रहे हैं तो वो अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट. इन लीगल लैंग्वेज ऑफ द पार्टनरशिप इट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड. इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड. है क्या पार्टनरशिप डीड? इन ए वेरी सिंपल सेंस वी कैन से it is a document which contain all the terms and conditions between the partners. Next, it is a relationship of the partners which will follow by the mutual agreement. जो पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है तो उस चीज को ये यहाँ पर बताता है. ये जैसे हमने आपको बताया वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपलसरी. जैसे हमने आपको पहले बताया कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है. ये पार्टनर्स की मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो डीड बनाए, ना चाहे तो ना बनाए. अब नेक्स्ट, व्हेन एग्रीमेंट इज इन रिटर्न इट इज नोन एज ए पार्टनरशिप डीड. अब अगर पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में है तो उसी को हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट, इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प. मतलब जब भी हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो हम उसका एक लीगल एविडेंस रखते हैं. तो हम उसको क्या कराते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, हम उसको स्टैम्प करा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोटरी. तो जब उसकी हम नोटरी करा लेते हैं तो वो हमारा एक लीगल एग्रीमेंट बन जाता है.
ताकि इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट हो तो हम उस डिस्प्यूट से कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट, इफ डीड कंटेन ए क्लॉज, अगर डीड में कोई क्लॉज है, इट विल होल्ड गुड, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होगा, कोई डीड नहीं है हमारी, तो फिर इस कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड, क्या है पार्टनरशिप डीड। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें हम पार्टनरशिप डीड में रखते हैं। नेम ऑफ द फर्म, आपकी फर्म का क्या नाम होगा, आपके कितने पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स का नाम, उन पार्टनर्स का एड्रेस, किस तरह का बिजनेस हम चलाएंगे, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, ट्रेडिंग बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, वी विल प्रोवाइड द सर्विसेज, कहाँ पर हम अपना बिजनेस चलाएंगे, हमारी पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी या अनलिमिटेड टाइम के लिए होगी, किस डेट से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, क्या पार्टनर को बिजनेस से पैसा निकालने का अधिकार होगा तो कब कितना पैसा वो निकाल सकता है, अगर पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या उसकी कैपिटल पे हम उसको कोई इंटरेस्ट देंगे, क्या जो पार्टनर ने पैसा बिजनेस से निकाला है उसके ऊपर हम कोई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस लोन पे हम उसको कितना इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर्स आपस में जो प्रॉफिट होगा उसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे, या अगर लॉस होगा तो उसको किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप डीड में। Now in continuation of the last slide, contents of partnership deed. Some more topics are salary. क्या हम किसी पार्टनर को कोई सैलरी देंगे तो कितनी देंगे, या बोनस देंगे तो कितना देंगे, किस कंडीशन में देंगे, गुडविल जो हम कैलकुलेट करेंगे उसका क्या मेथड होगा। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा, कुछ सालों बाद कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, हमारी फर्म छोड़ना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके अकाउंट्स को हम किस तरीके से सेटल करेंगे। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी वजह से जो लॉस होगा उस लॉस को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर किसी दो पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। हम अपने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उनका क्या मेथड होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, जो भी हम डीड में कोई भी पॉइंट रखेंगे वो पॉइंट कभी भी प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज, टर्म्स laid down in deed may be varied with the consent of all the partners. जो भी पॉइंट हम उसमें रखेंगे सारे के सारे पार्टनर उससे एग्री होने चाहिए। Now again, in a very simple sense, we will discuss about partnership deed. Means it is a document which contains terms and condition of the agreement between partners is called partnership
deed. क्या है पार्टनरशिप डीड? Very simply we say, in this we contain all the details about all the aspects which affecting the relationship between the partners. ठीक, उनमें इसमें उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं, जैसे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या रेशो होगी, पार्टनर्स को हम क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बोनस, सैलरी, all these things. So these things we include in the partnership deed. Now the topic 1 was over. So in this we discussed about the meaning of partnership, definition of partnership, features of partnership, nature of partnership, partnership deed, and contents of partnership deed. In next presentation we will discuss about the features in absence of partnership deed. Thank you. Thank you very much.